ہمیں جوائن کیا ماہر انتخابی امور سرور باری صاحب نے. سرور صاحب شکریہ آپ کے وقت کا. سرور صاحب سب سے پہلے سیکیورٹی کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فول پروف سیکیورٹی انتظامات کیے گئے ہیں؟ ابھی کچھ دیر پہلے انفارچونیٹلی ایک حادثہ بھی پیش آیا ہے, پشین میں دھماکہ ہوا جس میں 12 افراد جو ہیں وہ جاں بحق بھی ہو گئے ہیں. تو سیکیورٹی کے معاملات آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ویری نیکسٹ ڈے اب الیکشن ہے. دیکھیے سیکیورٹی جو ہے کی صورتحال تو پاکستان میں اچھی نہیں ہے, لیکن فوج نے اور کمیشن نے انتظامیہ نے بہت اچھا انتظام کیا ہے. لیکن اس کے باوجود آپ کو معلوم ہے کہ روکنا ان کو اتنا آسان نہیں ہوتا, اور ان کی پینیٹریشن ہے, ان کے جو ٹھکانے ہیں وہ شہروں کے اندر ہیں, تو اس لیے یہ خطرہ تو موجود رہے گا. لیکن جو انٹیلیجنس ہے سروسز کو اور بہتر کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ان کی موومنٹ پر نظر. اچھا باری صاحب, ہم دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ روز ویسے تو سیاسی جو مہم تھی اس کا وقت ختم ہو گیا تھا, لیکن جو سیاسی جلسوں میں مختلف سیاسی شخصیات کی جانب سے بیانات دیے گئے کہ اگر کسی قسم کی دھاندلی ہوئی تو اس کا بڑا ہی رد عمل اس کے لیے تیار ہیں سیاسی جماعتیں جو ہیں, تو اس طرح کے جو بیانات ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں ان کے رہتے ہوئے جب نتائج کا اعلان ہو جائے گا اس کے بعد کی صورتحال کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے دو قسم کے ہمارے تجربات ہیں پاکستان میں. ایک تو تجربہ یہ رہا ہے کہ اگر دھاندلی ریاستی سطح پر ہو, الیکشن کمیشن بہت بڑی دھاندلی میں شامل ہو, تو کئی دفعہ ایسے ہوا ہے کہ وہ ایجیٹیشن اس کی وجہ سے ہوئی ہے. جیسے آپ کو معلوم ہے 2013 کے انتخابات کے بعد پی ٹی آئی نے دھرنا دیا تھا جو کئی مہینوں پر مشتمل تھا. اس سے آپ ذرا پیچھے چلے جائیں, 1977 میں پی این اے کی بہت بڑی موومنٹ چلی تھی, کیونکہ کوئی 1 درجن 2 درجن سیٹوں پر دھاندلی کی گئی تھی, اور اس کی وجہ سے جو اپوزیشن تھی اس وقت, بھٹو صاحب کی اپوزیشن تھی, انہوں نے بہت زیادہ مظاہرے کیے, کئی سو لوگ مارے گئے, اور اس کے نتیجے کے طور پر جو ہے وہ ایک مارشل لا لگ گیا. تو اس طرح کا معاملہ رہا. اسی طرح 2018 کے انتخابات کے بعد دیکھیں کہ جمعیت العلماء اسلام, فضل الرحمان, پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون مظاہرے کرتی رہی ہے. لیکن اس دفعہ جو صورتحال ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو ابھی تک اطلاعات آ رہی ہیں بہت بڑی تعداد میں جو ہے پولنگ ایجنٹس کو اٹھایا جا رہا ہے, لوگوں کے شناختی کارڈ ضبط ہو رہے ہیں, لوگوں ایک گھرانے میں جو لوگ افراد ہیں ووٹر ہیں, کسی کا کسی جگہ پہ ووٹ رجسٹرڈ ہے, کسی کا کسی اور جگہ پر ہے. تو یہ لگتا ہے کہ اس میں بہت سارا معاملہ جو ہے وہ کوئی فری اینڈ فیئر الیکشن کے حوالے سے نظر نہیں آ رہا, اور ایک پارٹی کے امیدواروں کو ان کے پولنگ ایجنٹس کے اٹھائے جانے کی بھی خبریں آ رہی ہیں, اور انٹرنیشنل میڈیا بھی یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کی تاریخ کا یہ سب سے متنازع الیکشن ہے. تو اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو کافی پریشان کن صورتحال جنم لے سکتی ہے اگر الیکشن کے دن بھی اور کاؤنٹنگ کے بعد بھی لوگوں کو احساس ہو کہ ان کے ووٹ جو ہیں جس طرح انہوں نے ڈالے ہیں اس طرح نتائج نہیں آ رہے, کچھ دھاندلی کے امکانات ہیں, تو پھر ایجیٹیشن ہونے کا خطرہ موجود ہے, اور اس کے لیے بھرپور تیاری کرنی چاہیے. اور کم یعنی از آپ کو کم لگتا ہے ابھی بھرپور تیاری کرنی چاہیے, اور سرور باری صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ الیکشنز جو ہیں وہ متنازع ہیں؟ ابھی ہم شامل گفتگو کرتے ہیں, ڈی جی مانیٹرنگ ہارون شنواری صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. ہارون صاحب آپ یہ کہیے کہ الیکشن کے روز عام طور پر ہی یہ تاثر رہا ہے ہمارے ملک میں کہ ہر انتخابات میں جو آروز ہیں یا دیگر انتخابی عملہ ہے ان کی شفافیت پر یا کام کے طریقہ کار پر بہت سارے سوالات اٹھائے جاتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے اس بار ایسی کیا خاص ٹریننگ کی گئی ہے تمام انتخابی عملے کی کہ یہ الیکشنز گزشتہ الیکشن سے کچھ ممتاز ہو سکیں گے؟ بالکل, الیکشن کمیشن نے مکمل انتظامات کیے ہوئے ہیں, اور یہ الیکشن جو ہیں پہلے الیکشن سے بالکل بہتر ہو گئے ہیں. جہاں تک یہاں پینلسٹ نے ہمارے معزز نے بات کی ہے 2013 کے الیکشنز اور اس کے بعد جو دھاندلی یا دھرنے کے معاملات تھے, تو اس پہ اگر میں ایک کریکشن کر دوں کہ اس پہ جو جوڈیشل انکوائری کمیشن بنا تھا انڈر چیف جسٹس ناصر الملک, تو انہوں نے مسلسل جو ہے ان کی کئی ماہ تک ان کی انویسٹیگیشنز رہی ہیں, اور پھر ان کے بعد
जो फाइनल उनका डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का ऑनरेबल कोर्ट का आया है, तो उसमें बताया गया कि इसमें कोई ऑर्गेनाइज रिगिंग नहीं थी, सिर्फ कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव या मॉनिटरिंग और ऐसे कुछ अरेंजमेंट्स या इलेक्शन कमीशन के पार्ट में प्रोसीजर के प्रोसेस के वो ठीक करने थे। तो ये करेक्शन मैं कर दूं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो है इसको दांधली ज़दा नहीं करार दे चुकी है, वो बिल्कुल फेयर इलेक्शंस थे। अब दूसरी बात पे आता हूँ कि अभी जो पशीन के धमाके की बात की है, तो इलेक्शन कमीशन ने फ़ौरन उसकी रिपोर्ट तलब कर ली है और उस पर जो है ना उसको CS बलूचिस्तान चीफ सेक्रेटरी और IG बलूचिस्तान से रिपोर्ट तलब कर ली है। और तीसरी बात जो है कि कैसे मुख्तलिफ हैं, तो देखें इसमें पिछले 26 दिसंबर से हमारी मॉनिटरिंग टीमें ऑन हैं। अभी तक 650 के करीब हमने वार्निंग्स इशू की हैं, 170 डिफरेंट कैंडिडेट्स को, तमाम सियासी जमातों को उसमें फाइन्स हो चुके हैं डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर के ज़रिए, डिसक्वालिफिकेशन के केसेस आ चुके हैं, वार्निंग्स इशू हो चुकी हैं। और जहाँ तक ये बात है कि जिसने भी कानून को हाथ में लेने की कोशिश की है या करेगा, तो इलेक्शन कमीशन जो है ना अपनी पूरी पावर इस्तेमाल करेगा। और माजी में भी आपने देखा है कि इलेक्शन कमीशन ने डिस्क्वालीफाई किया है, इवन मिनिस्टर्स को किया है और MPs को किया है। तो ये भरपूर तैयारी है इलेक्शंस की, मॉनिटर्स भी हैं, सिक्योरिटी भी हैं और किसी को पोलिंग के अमल में रुकावट डालने की इजाज़त नहीं होगी। और हम इंशाअल्लाह पुरअमन इलेक्शन को कल इंश्योर कराएंगे। इसके लिए तमाम तैयारियां हैं और एक अरसे से चूँकि इलेक्शन कमीशन इस पे तैयारियां कर रहा था और हम पूरी तरह तैयार हैं। हमारे जो तमाम टियर्स हैं ऑफ सिक्योरिटी वो अलर्ट हैं और जहाँ पे वाक़यात हुए हैं पिछले 20-25 दिनों में इक्का दुक्का, तो ये तो हमारे सियासी कल्चर में ये रहे हैं ये चीज़ें। तो इस पे कमीशन खामोश नहीं बैठा, कमीशन ने कार्रवाइयाँ की हैं, बहुत सारे केसेस अभी चल रहे हैं और उसको अपने मंतिकी लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुँचाया जाएगा। तो ये बात मैं तसल्ली दे दूँ कि इंशाअल्लाह भरपूर शनवारी साहब, आप क्योंकि DG मॉनिटरिंग है, तो इंतखाबी अमल के दौरान हमने ये देखा है कि ठप्पे लगने की फुटेजेस, इसके अलावा बैलेट पेपर्स पर वोट डालने की तस्वीर लेने और इस किस्म की दूसरी भी ज़ाब्तियाँ सामने आती हैं। इस बार ऐसे क्या इंतजाम किए गए हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है जिससे भी ज़ाब्तियाँ सामने आती हैं, इसको कंट्रोल किया जा सके? देखिए, अब हमारा अभी जो इस मरतबा पूरा मीडिया विंग है वो इस मुसलसल कोशिशों में है कि हम मुख्तलिफ वीडियोज़ के ज़रिए अवेयरनेस फैला रहे हैं। लेकिन आप देख लें कि इसमें कुछ चीज़ें आ जाती हैं, कुछ ऐसे अनासिर जो दानिस्ता ये काम करते हैं ताकि कन्फ्यूजन फैलाई जाए। वरना इलेक्शन कमीशन की अपनी वेबसाइट है, अपने स्पोक्स पर्सन से चारों सूबों में और अपने सिस्टम्स हैं, तो इसको दानिस्ता फैलाया जाता है। हम उसका सदबाब करते हैं फेक न्यूज़ का और उसको फ़ौरन रिस्पॉन्ड करते हैं। मुसलसल हमारी वजाहतें प्रेस रिलीज की शक्ल में आती हैं और हम उसको क्लैरिफाई करते हैं। तो आवाम से भी ये गुजारिश है कि वो अफवाह पर यकीन ना करें। इलेक्शन कमीशन का तमाम अमल और तमाम प्रोसेस जो है वो सबको मालूम है। नए वोटर्स हैं, नए वोटर्स के लिए हमने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में हम उनके गए हैं, सेशंस कराए हैं। 1950 सेशंस हम मुख्तलिफ चारों सूबों में और इस्लामाबाद में यूनिवर्सिटी, कॉलेज और स्कूलों में करा चुके हैं कि वोट कैसे डाले जाते हैं। तो चीज़ें क्लियर हैं। जो अनासिर इस तरह की फेक चीज़ें करें उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। जो कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी करेगा या अमन में खलल डालेगा तो इलेक्शन कमीशन माजी की तरह अपना एक्शन लेगा और पोलिंग में किसी को भी असरअंदाज होने की, खलल डालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। जी ठीक है शनवारी साहब, साथ ही रहिए, मजीद गुफ्तगू भी आपसे करेंगे। अभी हमें ज्वाइन किया सेनेटर हुमायूं अहमद साहब ने, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। हुमायूं साहब, कहिएगा कि सबसे पहले तो आप इस इलेक्शन की शफाफियत को कैसे देख रहे हैं, और अब से कुछ देर पहले एक अनफॉर्चुनेटली एक हादसा पेश आया, अफसोसनाक, पशीन में धमाका भी हुआ है, तो क्या देख रहे हैं आप? वेरी नेक्स्ट डे इलेक्शन होने जा रहे हैं, सिक्योरिटी के हवाले से कोई खदशात आपके माइंड में हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये जो पशीन में धमाका हुआ है और इसमें जो लोग ज़ख्मी हुए या जो लोग शहीद हुए हैं उनके लिए है और जी, उसके लिए आवाम वो कहे वो कम है, ये इतना अफसोसनाक वाक़या है। अब उसमें दूसरी बात ये है कि जब हम इलेक्शन में इसका कितना इम्पैक्ट आएगा, ये सारी चीज़ें, ये मुल्क के लिए एक तशवीशनाक बात, ये पूरे मुल्क के लिए एक प्रॉब्लम है जिसको हमें एड्रेस करना पड़ेगा। लेकिन तीसरी बात जो आपने की है इलेक्शन के लिहाज से, ठीक है, इलेक्शन में जब आप कहते हैं कि क्या फ्री एंड फेयर हो रहा है या नहीं हो रहा, तो उसमें हम इलेक्शन को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दे। इलेक्शन पोलिंग पहले वाला टाइम
वाला दिन जो कि कल हो, पोलिंग के बाद चाहिए, ठीक है। तो पोलिंग से पहले जितनी भी एक किस्म की जो धन जो जो रोका जा सकता था पाकिस्तान के इंसाफ के हाथ पैर पकड़े जा सकते थे, वो दर्जा कम पूरा किया है। कोई ऐसा वाकया नहीं हो, कोई ऐसी जगह नहीं थे जहां पे उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए प्रॉब्लम ना खड़ी की हो, हर्डल्स ना खड़े की हो। लेकिन हम लोगों ने डिसाइड करना है कि उन्होंने वोट किसको देना है। हमने देखा है कल हमने देखा है मरी के जलसे का और फैसलाबाद के जलसे का, जहां पे एक पॉलिटिशियन कहता है कि आपके यहाँ से हाईवे भी जा रही है, एक्सप्रेसवे भी जा रही है, मैं मोटरवे ला दूंगा, मरी के इर्द गिर्द मोटरवे ला दूंगा। फैसलाबाद में जाके कहता है आपके एक इधर से मोटरवे, एक उधर से, मैं पीछे से भी मोटरवे ले आऊंगा और कितने मोटरवे चाहिए, मैं जितने कहोगे उससे ज्यादा दे दूंगा। लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने चूज करना है उस शख्स को कि जब वो मरी जाता है तो वो कोहिसार यूनिवर्सिटी की बात करता है और कहता है कि यहाँ के जब जब यूथ पढ़ लिख कर चली जाएगी तो कोहिसार खुद ब खुद तरक्की करेगा। जब वो फैसलाबाद जाता है तो वहां के कहता है कि यहाँ पे जब हम इंडस्ट्रीज को और एजुकेशन को बढ़ाएंगे तो यहाँ के लोग खुद ब खुद इतना उस जगह पे खुशहाली आ जाएगी कि यहाँ पे सड़कें भी हो जाएंगी, ये चीजें भी हो जाएंगी, डेवलपमेंट भी हो जाएगी, जॉब्स भी हो जाएंगी। तो वो ह्यूमन डेवलपमेंट की तरफ बात करता है। ये वही शख्स है जिसको आज के दिन एज वी स्पीक ऑक्सफोर्ड चांसलर के लिए उसका नाम सबसे ज्यादा गिना जा रहा है यूके में। आवाम को जो सियासी जमातें हैं उनके सियासी मंशूर को मद्देनजर रखते हुए अपना वोट का जो हक है उसको इस्तेमाल करना चाहिए।